हाय एवरीवन। सो आज हम चलते हैं पॉप ओएस को एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा। देखते हैं कैसा है। गेमिंग के लिए मैं ऑनलाइन देख रहा था तो it says like it's good for gaming, that pop OS. So I have downloaded the ISO. You can also download the ISO from pop OS website. You can search from here, pop OS. Okay. So this is the website from where you can download. So I have already downloaded it. So what I'll do, I'll just install it into VMware and explore the options and different resources and everything of that operating system, and we can see that how it looks, how it performs, and so without installing it, you can understand like whether you want to install it or not. Okay, so let's begin installation. So I have this VMware. So new virtual machine. Next, I have the ISO here. So this one is the Pop OS. Okay. Next, it is not recognizing. So basically, uh, if it did these many Linux system by default VMware recognizes. So what I'll do this other Linux kernel. This one. Next, okay, the other Linux, okay. Here I'll do pop os, okay. Back, pop os, okay. Next, I'll give some disk size around 20 GB since I'll explore it and remove it. So let's give it 25 GB. Okay, memory, I'm increasing it to 16 GB. And processor, I have like processor, I'll give it 6. Okay. And network adapter, you can give any one of this. So I generally give bridged one, so it will take the current operating system IP address or not. Okay. You can give NAT or anything. Let's finish it. And I'll do power on. Okay. So let's see how it looks. Let's close this. Okay. It's booting now. Okay. So meanwhile, it's booting up. I'll tell you. So I was reading through the technology news online, and I came through one article which suggested that there are 4 or 5 operating systems which are good for like Linux operating system, which are good for games. So I thought of exploring that, how it looks, how much resources you would uses in the beginning. बेसिकली इसलिए मैं एक्सप्लोर करना चाहता था कि कैसा दिखे। ये है उसका बेसिक ऐसा दिख रहा है। ओके। इसका हम बढ़ाते हैं थोड़ा सा साइड, ताकि आपको दिख सके अच्छे से वो ऑप्शन है कि नहीं। हाँ, ऑप्शन तो है, ये अच्छी बात है कि इट हैज ऑप्शन ऑफ एक्सपैंडिंग, दिस इज गुड। So in some version of Ubuntu, an older version, basically in 2025, it's coming by default. So it's good. Keep changes. So I'll make it a bit better so that you can see easily things on the desktop. Okay. So I've increased the size. Okay. This one is what you say. This is like uh, Pop Shop, I think. So this is the application. What you say? The application, like you have a uh, window app center like that. That Pop has, Pop OS has. So this one. So from there you can download. So let's discuss that later. Okay, so I've increased the size of the image. Let's now try installing it. So English is fine. United States. This one is asking for language. Okay. Oh, I'm from India, so I'll
choose India. I'm a Indian. So now this is asking keyboard layout. I'll keep it US. I'll keep. I can keep Indian or US. So I'll keep US for now. United States. Where is it? English US. Somewhere it should be. Remind me later. Okay. English US. Okay. So this is fine. This one is keyboard layout. Let it be default. Clean installation. It's in VM, so it does not matter. In if you are installing directly on your hard disk, you have to choose this carefully. So I am choosing custom because when you are installing it on your computer using any CD or USB directly, you can choose this one and do the partition accordingly. Okay, so this is the disk. Okay, so this is the 25 GB disk space which I had allocated it. So what I'll do, I create a new partition. New partition to require before partition can be added. Require new partition. Okay, somewhere device create partition table apply. Okay, MS DOS I'll select apply. So this is created. Now I'll create one new partition out of this. This is I'll keep everything simple. So full partition I'm assigning. Okay, ext4 partition and mount point should be there. I'll choose the mount point later. So I have added it. Okay. Okay. So this is apply, apply, close. Okay. This one has created. Delete, edit, format. I can do anything. So these are the options which are available when you. So this is the disk manager. Okay. So this disk manager. If you do want to do partitions, everything you want to make changes, you can do it from here. Okay. Let's see. Okay. So I'll check this one. Okay. Close. Okay. So the disk is available now. Okay. So erase and install. Okay. Sorry. I have to select. Okay. I have to mount this actually. So there should be mount point. Mount to ext4. Ext4. Okay. Okay. And I have to mount this somehow. 1 second. Partition. Okay. I'll delete it and create again. Let's see. I'm a bit confused. Format, delete, resize, move. Okay. Mount point option is not coming. So I'll delete it first. Apply. Okay. Hmm. ext4. Okay. Line to this. Uh, Label ext4. Partition name, primary partition. Okay. That's fine. Okay. So create new partition. So this is done. Okay. This is fine. Partition. Format is fine. Mount. Okay. Let me see. A bit confused. Create partition table is already created. Okay. New. Fine. Edit. Apply. 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 Detail. Okay. I'm not getting option to manage flag. Okay. New value level files in level file system. Not sure why it's happening. Okay. Let's close it. Okay. Select which partition to use across all device. Selecting format will release all the selected partition. You must at least select a root partition. It's also recommended a swap partition. Okay. Okay. Correct. I'm getting the option here. So it's asking option to format it. Use partition format, and I will mount root partition here. Default file system is ext4. Okay. Now it's right. Erase and install. Okay. So I'll put my name here. So this
OS basically looks very sleek, very responsive. Till now, I can see installation a bit easier. Here I put the password. Okay, it started creating the partition. If you want to see what going behind, you can click here. It will show you the details. Okay, okay. So see, it will show you what going on behind. Okay, basically it's extracting files now. You can see here. Okay, maybe if you don't want to see this, just click here. It will show you the animation and photos. Basically I want to see what's going behind, so इसलिए मैं इसको enable कर देता हूँ. तो ये देखिए अभी हो रहा है. अभी ये क्या कर रहा है, जनरेटिंग बूट इनिट आरडी, लाइक बूट इनिट, लाइक बूटिंग इनिशियलाइजेशन जहां से होता है उसको ये जनरेट कर रहा है बूट मेन्यू. बेसिकली बूटिंग रिलेटेड थिंग्स ये जनरेट कर रहा है. तो ये थोड़ा टाइम लगेगा. ठीक है. और जब ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो हम इसको बेसिकली एक्सप्लोर करेंगे. वाह, वेरी गुड यार. Very fast installation. So it's asking me to restart or something. What is this? Okay, let's see. इसमें कुछ होगा. अभी आ जाएगा. Text जो है था बैकग्राउंड में. Okay. Okay, let's restart the device. So installation was very easy, very fast, very swift. इतनी जल्दी इंस्टॉलेशन, मतलब पता नहीं, बहुत स्लीक है. बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम लगा मुझे. बट मैं अभी ubuntu यूज करता हूँ और कभी चलो लॉग इन करके देखते हैं. ओके, तो अभी ये छोटा है तो हम इसको स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कि तो आपको अच्छे से दिखे. ओके, 25 इंटू ये ठीक है, फाइल है, कीप चेंजेस. चलिए मैंने स्क्रीन बड़ा कर दिया. बाकी ये सेटिंग्स बाद में देखेंगे. तो जब ये बेसिकली व्हेन इट स्टार्ट्स, तो it shows this screen. So this is a kind of welcome screen. You may be familiar while installing any operating system. A welcome screen comes up when you start the window first. So it's asking me like how it should be. So their option no dock. So this dock will be like gone. This docked extended var, and if I choose this one, it will be similar to Mac OS if you have experience with it. Look, basically this whole bar is removed. So if you can see, it lies from here to here, and with this option, it's so I'll keep it like this. Okay, dock does not extend to edge. Next. Nowadays, Windows should also bring some features like this. Show workstation. So if you close this, it will not come. You can see here. Okay, workspace. Like you can have more than one or two. What you say, desktop. Okay, as many as, and show application window. Okay, so let's do. So this is work. If you want this, it's fine. Otherwise, you can disable this. Okay, if you disable this, it will be gone. You can always come back and enable it. It's fine. And this is application menu. So when you click this application will come. If you want, you can do it from here also. See the same thing. Okay, so if you want both places to for usability or reachability, like suppose your mouse is here, you can go here or come here to install. You keep it like that. So center, this date time will come in center. If you want, choose it right. It has gone there. If you want it left, you can choose it here. It's very customizable. One thing I have seen that almost all the Linux distribution are very customizable. Okay, basically this Pop OS is has been derived from Ubuntu OS. Okay, so basically it follows everything of Ubuntu. So let's see this option you have. It's clear. And next. So what it says, open switch application from launcher. Okay, okay. So if you press something, like I have pressed Windows, okay, so desktop, camera, something like that. Open and switch application from launcher. Press super key or use an icon on the dock to display the launcher search field. Okay. hmm
So basically, if you click this one, sorry, uh, yeah, sorry, press super key, or I don't know about this option. Hope you can understand from here. Okay. So I think some key has been assigned, and press super key or use an icon in dock. Which one is the icon? This one. Okay. Oh, okay, got it. See, this is the launcher. Okay, if you can type here to open anything. Okay, look here. So it's a kind of search box. You can open like this. You can go open it. Okay, so it's fine. Okay, you can open it from here. Okay, next. Okay, gesture. I'm installing it on VM and it's on desktop, so I don't need this. If you are on laptop and installing directly on laptop, you can use this option. Okay, here you can select the mode. If you like dark mode, it's fine. If you find light mode, it will be like this. This also look great. Okay, so depend upon you which one you like. So for now, I'll keep it the light one. Next, location service. If you want to share your location with the operating system developers or company, it's fine. You can do. I'll keep it like this only. Next, here you can select your time zone. So mine in India. Okay, where is it? Okay, now it's taking Kathmandu, Nepal, India. Now it's taken India. No, it's taken Sri Lanka. No. This should be clickable. India. There are many options here. Okay, I'll choose New Delhi. Let's choose New Delhi, India. Okay, so you can choose anywhere, whichever time zone you are in. Next, these are the option here to add your accounts, like connect online account. You can connect to Google, NetCloud, Microsoft, anything. So for now, I'm not doing, so I'm skipping this. So start using Purple. Okay, so installation has been done. It took just it's on VM. So you can think like if it is on a real machine, it will take more or less like less time. So basically, in 5 minutes, the installation is done, and the configuration has done like in 2 minutes only. But I explained, so it took more time. So let's do it now. Excuse me. Ah, excuse me. Sorry. Okay, so let's load the desktop now. So the options are workspace applications. If we click workspace, this will come. Okay. I think there should be option of dynamic workspace. It should be there someday also. And this will clicking this comes with the like comes application. So these are application which are available by default. Home application. This I'll click open every application and see like how it looks. In office application, system, utility, create folder. You can create a folder and add your favorite applications there. Suppose you are a developer and you want to add development related applications. So आप क्या कर सकते हैं कि एप्लीकेशन एक नया फोल्डर क्रिएट कीजिए और उसमें डेवलपमेंट रिलेटेड आप तो अपना खुद का एक कस्टमाइज कर सकते हैं ठीक है अभी मैं नहीं कर रहा हूँ बेसिकली ये इंटरफेस जो है बहुत अच्छा दिख रहा है इट्स लुक्स वेरी स्लीक क्लीन क्योंकि सारा ऑर्गेनाइज्ड है ठीक है और आप अपनी उससे ऑर्गेनाइज भी करते हैं चलिए मैं एक वो भी कर लेता हूँ है एक क्रिएट कर लेता हूँ DVELOPMENT development. Okay, where it has gone. System update available. Okay, it has come here. Sorry, the spelling is incorrect. So let's see if I can modify it or not. There should be an option to do that. I don't know because I'm using this OS first time. Okay, so development, office development. Okay, here is the option edit, cancel, development, edit. The spelling is wrong. DEVLOPER developer I do. Okay. Okay. So this is here. You can create as many folder as you want. You can delete it also if you want to delete. You delete the folder. Okay. That's fine. That's it. So this is the application menu. Here it's time calendar. So good one.
Do not disturb, clear. These are the options. Okay, it's as telling me that system updates is available. So I have installed it just now. तो अभी हम इसको अपडेट नहीं करेंगे बेसिकली. ओके, ठीक है. या कैलेंडर है अपना, देख सकते हैं. नो इवेंट समथिंग. So if you add your online accounts, your calendar will sync here. When events, it will keep it from here. Okay, select weather location. I'll search New Delhi. Okay, it's loading basically. Okay, so it has connected. This is the weather details. So I think now it should come here somewhere. Okay, it's not coming. It should come basically here somewhere. If you click, it will come. Okay, fine. These three things had been done, and here option is for tile window. Okay, tile window. Some option is there. Floating window exception. Some option is there. Floating window exceptions. Okay. System exceptions. Okay. Then we have to explore this. Pop shell example. Okay. So these are some options here. You can explore it. So shortcut launcher, super key. So you don't have super key in window. So I think starting window. Okay. Yes, click on window button in this will launch. Here you can do like office something. Okay. Firefox, anything you can do. So instead of clicking here and opening something, you can directly search here and open that in his settings. Okay. View all. Show window tiles. Show active hints. Active border radius. Something will change. Not sure. I haven't used it. Okay. So basically, in any active program is there. That so it that is for the like for its border. This is the option. Okay, so let's. This one is wire network. It's connected VMware. With networking related things. If you want to change anything, so this come as a display. Okay, setting wired connection, wired setting. So you can do any network configuration related things here. Okay, this is sound. You can increase or decrease sound here. Okay, setting. So this will take you the like setting overall setting menu. Okay, so this is the overall setting menu. We will explore this in a bit. Another button is power off logout. So these are the options in that. Okay, so this is overall desktop, and this is the like launch bar. You can say. So this will show launcher. This will show this one like workspaces. Okay, so this one will show applications. I go this. This one will show applications. This one will open Firefox. You can drag and drop anything here if you want. Okay, you can make it bigger, smaller. That's okay. This one is file manager. This is the file manager. Okay, desktop, document, video, template. That's similar. It's very cool, very calm operating system, very swift. The operation is very good. Like it's not lagging anything. I think this has been optimized. That's why it's recommended for any game or something. And this one is the Pop Shop. That is App Center. You can think of it. So basically, from here you can install any application that you need. Suppose you are a developer, you need Visual Studio Code. You can install it here. I'll Let's install that one. And anything else you want? Visual Studio Peak, City Virtual Machine Manager. Okay, okay. You can also install this Virtual Machine Manager. So you can create VMs in this. So it's good. So there are a lot of, I think thousands and thousands of applications which are available for this. So आप क्या कर सकते हैं इसमें से जो चाहिए आप इंस्टॉल कीजिए. अगर आपको स्पेशल कुछ चाहिए, सपोज मैं क्या सर्च करूँ, मेल्स, मेल समथिंग, तो मेल से रिलेटेड जितने सॉफ्टवेयर है इसमें आ जाएंगे. जो मुझे चाहिए मैं उसको इंस्टॉल कर लूंगा. ठीक है, जीमेल, के मेल, ये सब सब कुछ है. तो जो चाहिए डेवलपमेंट के लिए, जैसे मुझे पाइथन से रिलेटेड कुछ चाहिए. ठीक है, PYTHON पाइथन स्पेलिंग देखिए, तो पाइथन से रिलेटेड चीजें आ गई. अब मुझे पाइथन इंस्टॉल करना है,
तो मैं पाइथन इंस्टॉल कर लूंगा, मैं पाइथन इंटरप्रेटर और ये चीज कमांड लाइन से भी कर सकते हैं, बट इसमें ऑप्शन है, ठीक है, ये है। तो ये सारी चीजें हैं बेसिकली। ठीक, इसमें एक्सेसरीज में देखिए क्या क्या है, एक बार इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं बेसिकली। के 10 एडिटर, जीरो 10 एडिटर, ओके, ये हेक्स एडिटर है एक काइंड ऑफ। तो दीज इतने सारे सॉफ्टवेयर है, आप इसको एक्सप्लोर कीजिए, जिस चीज़ की ज़रूरत है आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ डेमो के लिए कर रहा हूँ। ऑडियो से रिलेटेड अगर कुछ चाहिए, सपोज ऑडियो प्ले करने के लिए ऑडियो फ्लैश प्लेयर और यूजिंग MP3, मान लीजिए MP3 प्लेयर सर्च करना, MP3 आ गया ना। MP3, इससे रिलेटेड ऑडियो सिटी, ये सब, ये सारी सॉफ्टवेयर हैं, आप चाहे जो चाहिए आप इंस्टॉल कर लेना। होम पे चलते हैं, ऑडियो हो गया, कम्युनिकेशन से रिलेटेड होगा, ठीक है, जैसे मैसेंजर और एनीथिंग लाइक दैट, कॉन्टैक्ट मैनेजर। तो एक दो एग्जांपल देख ले, क्लॉमेल। क्लॉमेल है जो ईमेल ईमेल क्लाइंट है, आप इसमें जीमेल और एनीथिंग आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये सारा है कम्युनिकेशन से रिलेटेड। आपका हो गया डेवलपमेंट से रिलेटेड हो गया, डेवलपमेंट में आ गए डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज का सपोर्ट हो गया, ब्लू फिश हो गया। ब्लू फिश बेसिकली डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, डीवी व्यूअर, डेव टूल बॉक्स, एवरीथिंग C++। बेसिकली डेवलपमेंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे, एजुकेशन से रिलेटेड इसमें मिल जाएंगे, एजुकेशन में। तो आप ये बहुत है, मतलब इतना एप्लीकेशन तो बहुत है। इसके अलावा भी आप, मुझे लगता है, अलग से कमांड लाइन से, जैसे बाकी लिनक्स के ऑप्शन, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में इंस्टॉल कर सकते हैं, वैसे इसमें भी कर सकते हैं। ये देखिए, सुगर लर्निंग प्लेटफॉर्म, सुगर लर्निंग प्लेटफॉर्म, लर्निंग थ्रू सुगर एक्टिविटी, दैट सम कोई टर्मिनल है। तो बेसिकली बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे एप्लीकेशन, आपको जो चाहिए इंस्टॉल किया। फाइनेंस से रिलेटेड भी है, देख लेते हैं क्या क्या है इसमें एग्जाम्पल। बिटकॉइन स्कोर, अच्छा, इसमें फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारा, मतलब आप एक्सप्लोर कीजिए, आप इसको इंस्टॉल कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो यूज कीजिए। फन एंड गेम्स देख ले, एक दो गेम्स इंस्टॉल करके देख लेते हैं। बेसिकली ये VM के अंदर है, तो इसका परफॉर्मेंस हम बहुत ज़्यादा जज नहीं कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट मशीन पे होता तो हम सोच सकते हैं, तो हम सिंपल सा गेम इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, ये करेगा। चलिए ये करते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि ये VM के अंदर है, डायरेक्ट मशीन पे ज़्यादा अच्छा काम करता है ये। चलिए एक दो गेम इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि मैं बेसिकली इसको इंस्टॉल करने का मेरा पर्पस यही था कि इन सम लाइक आई केम टू नो दैट दिस इज गुड फॉर गेम्स एंड ऑल। वैसे देख लेते हैं इंस्टॉल करके, पर ये सारे गेम्स अवेलेबल है, आप चाहिए तो इसको इंस्टॉल कीजिए, खेलिए। और भी कुछ है, पिन बॉल कहीं दिख रहा था मुझे। आ, ये क्या है, फुल बाट, पता नहीं, पूल है, फुल बिलियर्ड, अच्छा बिलियर्ड है, ठीक है, देख लेते हैं, एक दो गेम इंस्टॉल करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, दो गेम हो गया, उसी को प्ले करके देख लेंगे कैसा होता है बेसिकली, ठीक है। ये हो गया आपका गेम ऑन फन एंड गेम। ग्राफिक्स से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे जिम्प हो गया, फोटो एडिटर, वीडियो एडिटर, ये सारी चीजें हो जाएंगी इसमें। ब्लेंडर, इसमें आप एडिटिंग, 3D मॉडलिंग, ये सब कर सकते हैं, तो ये सब फ्रीली अवेलेबल है यहाँ पे। जिम्प बोले, गिम्प बोले, ये बेसिकली फोटोशॉप टाइप का एक बहुत पावरफुल इमेज एडिटर है। तो आप इसमें देखिए, एक्सप्लोर कीजिए और अपने रिक्वायरमेंट के साथ इंस्टॉल कीजिए, अनइंस्टॉल कीजिए, ठीक है। ये था ग्राफिक्स से रिलेटेड। अब इंटरनेट से रिलेटेड बेसिकली मुझे लगता है ब्राउजर्स ब्राउजर्स ये सब सारी चीज़ें होंगी, एग्रीगेटर, ये सब सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट ब्राउजर्स भी होंगी। मान लीजिए ओपेरा है, क्या देखे, ओपेरा, फाइल जिला है, देखिए फाइल जिला है, जो कि FTP क्लाइंट है। ओपेरा है, ठीक है, अवेलेबल है। CHROME, क्रोम देखे हैं कि नहीं, क्रोमियम भी है, गूगल क्रोम भी है, गूगल क्रोम भी है, तीन है बेसिकली। उसके बाद में मान लीजिए मैं देखता हूँ, विंडोज का वो होता है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, एज, EDGE, एज है कि नहीं, EDGE, यानी विंडोज वाला है। माइक्रोसॉफ्ट एज भी है, बहुत अच्छी बात है। फिर सफारी है कि नहीं, FARI, सफारी, ये मैकओएस का जो ब्राउजर, मतलब ब्राउजर होता है डिफॉल्ट पर। सफारी नहीं है सर, कोई नहीं, ठीक है, फाइन। अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई ऑप्शन होगा इंस्टॉल कर, अगर आप सफारी यूज कर सकते हैं तो सफारी यूज कीजिए।
इंटरनेट हो गया, मैथ साइंस इंजीनियरिंग हो गया। इसमें देख लीजिए क्या क्या से रिलेटेड, पढ़ने वढ़ने से रिलेटेड चीजें हैं। जैसे प्लॉट है, ग्राफ प्लॉट करने से रिलेटेड है, मैथ से रिलेटेड, क्या केमिस्ट्री से रिलेटेड भी चीजें होंगी, है ना। केमिकल बॉन्डिंग समथिंग, ठीक है। हाँ, मतलब बेसिकली इसमें क्या है, पढ़ने से रिलेटेड हो गया। ऑफिस मतलब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सबसे रिलेटेड चीजें हो गई। बुक, ये सारी चीजें है। ए बी है, वर्ड वर्ड प्रोसेसर है, आपका एडोब पीडीएफ रीडर। तो बेसिकली ऑफिस रिलेटेड चीजें इसमें है। आपको जो चाहिए इंस्टॉल कीजिए, काम कीजिए। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इसमें है प्राइवेसी माइंडेड हाईली कॉन्फ़िगर्ड डिस्कॉर्ड क्लाइंट ऑथेंटिकेटर है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर है, जिसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और ये ऐसे काम ऑथेंटिकेटर काम करेगा। ठीक है, तो बेसिकली सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें हो गई। सिस्टम सिस्टम टूल्स हम मान सकते हैं। तो ऊपर देखते हैं क्या है, कंटेनर और टर्मिनल, ये क्या है बेसिकली फीचर। Exist is a terminal for genome that focuses on ease of use of worlds of containers। अच्छा, तो डॉकर वॉकर है ना, जिसमें कंटेनर का यूज होता है, तो शायद उसके लिए मैनेज करने के लिए होगा कुछ चीज। एक्सप्लोर करेंगे तो ज्यादा पता चलेगा, मतलब फर्स्ट टाइम देखने में तो नहीं पता चलता। ये बेसिकली सिस्टम से रिलेटेड है। सिस्टम मॉनिटर है, देखिए जैसे, अच्छा ऐसे सिस्टम मॉनिटर कर सकते हैं। ये सारी चीजें बेसिकली सिस्टम से रिलेटेड ये हो गया। यूनिवर्सल एक्सेस, एक्सेसिबिलिटी है, जीनोम डेस्कटॉप, सेल राइटर, ये सारी चीजें हैं अवेलेबल, आप देख लेते हैं। वीडियो वीडियो प्लेयर्स होंगे बेसिकली, या एडिटर्स होंगे। तो ये सारे वीडियो प्लेयर्स अवेलेबल है। आपको जो पसंद है उसको इंस्टॉल कीजिए, यूज कीजिए। ये हो गया राइट एंड लैंग्वेज। ओके, राइटिंग वही है, मतलब थोड़ा सा रिपीटेशन है इसमें। राइटिंग और एडिटर्स है, मैक्स एडिटर्स है जिसमें आप वो कर सकते हैं। नोट्स एडिट लिखने के लिए है, मतलब ये सारी चीजें हैं। ठीक है, वर्ड है। ये हो गया बेसिकली आपका पॉप शॉप को हमने एक्सप्लोर कर लिया है। अब हमने ये हो गया ऑप्शन 3 खत्म किए। तो ये था पॉप शॉप, सॉरी एप्लीकेशन। ठीक है, ये हो गया, ये पॉप शॉप हो गया। ये हमारा सेटिंग। अब हम सेटिंग्स देख लेते हैं। एक चीज हम देख ले कि जब हम जैसे इंस्टॉल करते हैं तो इसमें कितना मेमोरी यूज हो रहा है। सिस्टम मॉनिटर खोल लेते हैं, बस थोड़ा सा देख रहे हैं ना, आइडिया लगेगा थोड़ा। देखिए, जब कुछ नहीं इंस्टॉल किया है, एक दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं, जिसमें मुझे नहीं लगता है कि वो बैकग्राउंड में चल रहा होगा, तो मुझे लगता है कितने होंगे या कितने नंबर ऑफ प्रोसेसर्स कहीं दिख रहा है। बेसिकली मैंने ये देखते हैं, इसको मैंने सीपीयू 6 दिए थे। तो सीपीयू यूजर्स तो बहुत कम है, सिंपल है, मतलब 20 अराउंड 10% होंगे। ठीक है, मेमोरी 16 GB दिया था, तो बाय डिफॉल्ट 4 GB यूज कर रहा है। हो सकता है जब एप्लीकेशन खुले तो ये ऊपर जाए। स्वैप क्रिएट नहीं किया था, तो स्वैप यूज नहीं हो रहा है। नेटवर्क थोड़ा सा है, जैसे डाउनलोड कर रहा है उसके अनुसार। प्रोसेस मुझे लगता है अराउंड कितने होंगे, इसमें नंबर नहीं दिया। एक्टिव प्रोसेस, ऑल, अच्छा एक्टिव प्रोसेस सिर्फ ये है, ऑल प्रोसेस ये है। इसमें बहुत सारे हैं जो एक्टिव नहीं भी है। ठीक है, माय प्रोसेस, इसमें अपने प्रोसेस दिख जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका, ये सारी ऑप्शन हैं। सो ओपन फाइल, सर्च फॉर ओपन फाइल, इसमें आप ढूंढ सकते हैं कोई फाइल ओपन। तो ये सब आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अराउंड कितने होंगे, मुझे लगे अराउंड 25 to 30 प्रोसेस। हाँ, अराउंड उतना ही जो चल रहा है बेसिकली। ये फाइल सिस्टम का हो गया। ठीक है, फाइल सिस्टम 37% यूज हो रहा है बेसिकली। चलिए क्लोज कर दीजिए। अब हम देख रहे थे सेटिंग्स। ठीक है, ठीक ठाक रिसोर्स यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा इट्स नॉट यूजिंग लॉट ऑफ रिसोर्सेस। इट्स आई थिंक वेरी ऑप्टिमाइज्ड। ओके, so now let's explore setting menu, setting option. So first is network. We have already seen Bluetooth related thing. So if you have Bluetooth uh, device, you will have options here. So I don't have it in VM, enabled it, so it's not there. So what I can do, I can add here. If there is a, let's see, there is option or not. Bluetooth.
hard option is not there to enable it. Okay, there must be something. Okay, let's begin. So desktop. So inside desktop we have desktop option, background, appearance, dock, and workspaces. So let's see desktop options. So launcher, workspaces, super key, actions. Okay. So if you press super key, what it should do, and that is defined here. So see, if I press super key here, it is opening the launcher. Suppose I select this one, it's pressing super key will bring the workspace. Okay. And if I press this, so it will bring the list of applications. So whichever you like, you can keep it. So I just keep it launcher for now. लॉन्चर रखते हैं हॉट कॉर्नर क्या है कि यहाँ इस तरफ जाएंगे, इसमें काम नहीं करेगा बेसिकली, ये फुल स्क्रीन में मोड होएगा तो शायद काम करे। हॉट स्क्रीन किस तरफ से क्या, ओके, देखते हैं ट्राई करके। हॉट स्क्रीन बेसिकली काम करने लगा। पहले क्या था कि जीनोम में क्या होता था ना कि ऑप्शन होता है, जैसे हम इधर कॉर्नर पे ले जाएंगे सपोज यहाँ पे, तो ये खोल दे ओपन कर देता था ये, लेकिन इसमें पता नहीं काम नहीं कर रहा है तो छोड़िए इसको। ये बेसिकली यही है हॉट कॉर्नर। एनेबल टॉप लेफ्ट हॉट कॉर्नर फॉर वर्क। अगर यहाँ लेके जाते हैं, रुके मैं इसको ना वर्क स्पेस को डिसेबल कर देता हूँ तब देखता हूँ। ठीक है, यहाँ ले गया, नहीं ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, बेसिकली ये क्या होता था कि जैसे आप माउस बटन यहाँ लेके आएंगे इस जगह पे, तो ये वर्क स्पेस वाली ऑप्शन खुल जाती थी, तो जो कि काम नहीं कर रहा होगा, कुछ हो सकता है आप डायरेक्ट सिस्टम पे इंस्टॉल कर, वीएम के अंदर काम नहीं कर रहा, हो सकता है आप डायरेक्ट सिस्टम पे इंस्टॉल करें तो ये काम करे, हो सकता है। ठीक है, बाकी आप ये हो गया, टॉप बार हो गया आपने, ठीक है, शो वर्क पेज, ठीक है, ये हमने पहले देख लिया था। विंडो कंट्रोल्स, शो मिनिमाइज्ड बटन्स। ओके, इसमें है ये जैसे है ना मिनिमाइज, करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, मिनिमाइज का ऑप्शन ही नहीं है, फिर आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, तो मिनिमाइज बटन रहने देते हैं। शो मैक्सिमाइज बटन ये है, देखिए अभी नहीं है मैक्सिमाइज बटन, मैं करूँगा शो मैक्स, ये आ गया मैक्सिमाइज। ठीक है, ये हो गया, ये आपको जैसा रखना है आप रखिए अपने अनुसार। बैकग्राउंड में ये ऑप्शंस हैं, चलिए देख लेते हैं इसको चेंज करके। ये है, ये है, ये है, ये है, तो थोड़ा और छोटा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, है ना। ये है, ठीक है, ये सारे मतलब बेसिकली ये डेस्कटॉप्स है, जो आपको अच्छा लगे चूज करके अपना रख लीजिए। इसमें एक टाइम वेस्ट भी होगा कुछ शायद। ठीक है, कॉस्मिक, ये डिफॉल्ट जो डेस्कटॉप था, बाकी आप चाहे तो इंटरनेट से डाउनलोड करें अपने अनुसार, अपने अनुसार जो भी हैं वो चीज़ें डाउनलोड करें। चलिए ये हो गया। इसमें टाइम बेस्ड वाला ऑप्शन नहीं है, उबंटू में एक होता है जिसमें टाइम बेस्ड भी होता है कि जैसे इवनिंग में इवनिंग जैसा हो जाएगा, मॉर्निंग में मॉर्निंग जैसा, तो ऐसा कुछ है नहीं। चलिए कोई नहीं, चलिए मैं बाय डिफॉल्ट ये रखता हूँ, देखता हूँ इसके साथ अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं बैठी हुई हूँ, बाकी तो अपना ऐसे ही है। अपीयरेंस में है ब्लैक, मतलब डार्क मोड या लाइट मोड हम देख चुके हैं। डॉक में है एनेबल डॉक, ठीक है, अगर डिसेबल कर देंगे तो नीचे वाला खत्म हो जाएगा। बाकी ये सारे एक्सटेंड डॉक टू एज, ठीक है, आपके ऊपर है, ऐसा भी रखना रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा कर देते हैं। उसका आइकन क्लिक एक्शन लॉन्च ऑन साइकिल विंडो, आइकन क्लिक का है, पता नहीं, ये मुझे नहीं आइडिया क्या है ये। डॉक विजिबिलिटी ऑलवेज विजिबल, ऑटो हाइड, अगर ऑलवेज हाइड खत्म हो गया, ऑटो हाइड, इंटेलिजेंटली हाइड, ये पता नहीं गया प्राइमरी पे, अब कैसे आएगा पता नहीं। ठीक है, यहाँ जैसे ऐसे करते हैं, आना चाहिए वैसे, अभी तक तो आ जाना चाहिए, नहीं आया तो हमको इसको ऐसे ही कर देते हैं ऑलवेज विजिबल। डॉग साइज छोटा करना है छोटा कर दीजिए, बड़ा करना है बड़ा कर दीजिए। कस्टम चाहिए तो इसको 120 मान लीजिए कर दिया मैंने, नहीं 120 कर दिया, इतना बड़ा हो गया तो वो आपके ऊपर है। ठीक है, मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ, इतना थोड़ा ठीक है। इसके बाद पोजीशन ऑन डेस्कटॉप, ये आप कहीं भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट, जैसे यहाँ इस साइड चाहिए तो इस साइड आ गया, इस साइड चाहिए तो इस साइड आ गया, मैं इसको फिलहाल नीचे ही रख रहा हूँ। ठीक है, सेंटर लेफ्ट कहाँ से आपको अलाइन करना है बेसिकली, अगर आप इसको डॉक, इसमें डॉक का ऑप्शन था ना कहीं पे, रुकिए,
X10 हटा देते हैं, तब पता चल रहा है डिफरेंट। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, स्टार्ट सेंटर में आ गया, और सेंटर यहाँ पे आ गया, तो यहाँ रखिए, ठीक है। वर्क स्पेसेस, इसमें देखिए ऑप्शन है डायनेमिक वर्क स्पेसेस, एम्प्टी विंडो, देखिए ऐसे है, इसमें ऑप्शन आना चाहिए विंडो वर्क स्पेसेस, यहाँ पे जैसे इस पे करूंगा तो इस पे चला जाएगा। अच्छा, एक बन गया है ना। तो जैसे जैसे आप इसे करते जाएंगे, जैसे इसको मैंने फिर इस पे कर दिया, और कुछ ओपन कर लेता है, फायरफॉक्स ओपन कर लेता हूँ, इसको मैंने इस पे कर दिया, एक और बन गया। तो डायनेमिक जितना चाहे बनता जाएगा, ठीक है। अगर आप उसको ऑप्शन को नहीं चाहते हैं करना, ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या करिए, फिक्स नंबर ऑफ कर दीजिए 4 बाय डिफॉल्ट। तो आप जब देखेंगे 4 कर दिया, तो ये 4 ऑलरेडी बने रहेंगे। तो आपको अगर डायनेमिक करना है तो डायनेमिक कर दीजिए, कि जैसे जैसे आपको जितनी चाहिए उतने वर्क स्पेसेस बनते जाएंगे। फिलहाल डायनेमिक रहने दीजिए, बाय डिफॉल्ट 2 रहेगा। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ ले आता हूँ, तो एक इसको डिलीट करने का भी ऑप्शन होना चाहिए, शायद होगा। अ, इसको मैं यहाँ ले गया। अच्छा, मतलब बेसिकली ये है कि अगर जैसे एक विंडो में इस पे ले आया तो एक नया क्रिएट कर देगा, एक सिर्फ एक पे है तो बाय डिफॉल्ट एक को डिलीट कर देगा। तो आपको डायनेमिक रखना है तो डायनेमिक रखिए, और फिक्स रखना था फिक्स, चाहिए आपके ऊपर। मल्टी मल्टी मॉनिटर बिहेवियर, अगर आपके पास मल्टीपल मॉनिटर है तो वो ऑप्शन के लिए है। मीन्स आपका 2-3 मॉनिटर है तो उसके से रिलेटेड है। प्लेसमेंट ऑफ द वर्क स्पेस, स्पीकर अलोंग साइड द लेफ्ट साइड, अलोंग साइड द राइट, राइट अब देखते हैं। अच्छा, ये राइट साइड आ गया ना, आपको जिस तरफ चाहिए उस तरफ कर लीजिए, ठीक है। इधर भी सही है। तो उस पर डिपेंड करता है कि मान लीजिए एक तरफ आप इसको रखें, एक तरफ इसको रखें, हाँ डिपेंड करता है। तो जैसा चाहिए आप अपने अनुसार उसको चेंज कर सकते हैं। ये हो गया आपका डेस्कटॉप का ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद नोटिफिकेशन में आप नोटिफिकेशन डू नॉट डिस्टर्ब, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बेसिकली ये सारी जो जो एप्लीकेशंस है वो नोटिफिकेशन भेज सकती है ऑपरेटिंग सिस्टम को, यहाँ पे बेसिकली आप देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आपके आ जाएंगे, ठीक है। देखिए वेदर भी आ गया ना बाय डिफॉल्ट यहाँ। अब आ गया एप्लीकेशन तो ये लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन है जो आपके पास इंस्टॉल्ड है, तो लिस्ट उसको दिखा रहा है। इसको मान लीजिए इससे रिलेटेड कुछ सेटिंग्स है, सपोज क्रोमियम है, तो इसमें ऑपरेशन स्टोरेज इतना यूज कर रहा है, ठीक है। अगर आपको कभी है कि कोई एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा यूज कर रहा है तो क्लियर कैश कर सकते हैं। अब इसमें कुछ भी नहीं है, मैं कोई और चीज़ देखता हूँ, फायरफॉक्स देखता हूँ। स्टोरेज कहीं है क्या, वीडियो फाइल्स, अनसेट अनसेट, ये सारी एप्लीकेशन बेसिकली हर एप्लीकेशन से रिलेटेड सेटिंग यहीं आपको मिल जाएगी। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, ठीक है। प्राइवेसी से रिलेटेड सेटिंग्स है, लोकेशन सर्विस, थम, थंडरबोल्ट, फाइल हिस्ट्री, फाइल हिस्ट्री, ये सारी चीजें आप देख लीजिए। ब्लैक स्क्रीन, ब्लैंक स्क्रीन डिले 5 मिनट, ठीक है, ये सब है प्राइवेसी से रिलेटेड। और आपका आ गया, अगला आ गया ऑनलाइन अकाउंट। अगर आप कुछ अकाउंट इसमें ऐड करें, तो मान लीजिए मुझे गूगल का अकाउंट ऐड करना है तो वो कर सकता हूँ। नेट क्लाउड से रिलेटेड कनेक्शन, यूजर नेम, पासवर्ड, माइक्रोसॉफ्ट, तो ये सारे ऑनलाइन अकाउंट में इसमें बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर सकता हूँ। शेयरिंग, अगर आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, अगर आपको रिमोट शेयरिंग इनेबल करना है, इसको यहाँ से इनेबल करिए पहले। इनेबल हो गया, उसके बाद आप रिमोट डेस्कटॉप, रिमोट कंट्रोल, ठीक है, आप इसको रिमोटली इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे विंडोज में जो रिमोट रिमोट डेस्कटॉप होता है जैसे वैसे ये भी करनी है। ये यूजर नेम है, पासवर्ड है, आप इसको चेंज कर लीजिए अपने अनुसार, ठीक है, कुछ भी कर दिए, सब कुछ भी डाल दीजिए, हाँ, उसका है, ठीक है, ओके। और इसे फिर रिमोटली आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इनेबल कर दीजिए। फिलहाल हम इसको डिसेबल रखते हैं। अगर कुछ मीडिया शेयरिंग करना चाहते हैं, मतलब इस कंप्यूटर से दूसरे पे, तो वो भी इनेबल कर सकते हैं। साउंड हो गया, सिस्टम वॉल्यूम हो गया, 100 बाय डिफॉल्ट होता है। ओवर एम्पलीफिकेशन अगर कर देंगे तो ये 250 तक, 150 तक शायद चला जाता है, ठीक है, 150 तक साउंड चला जाएगा। तो ये आपका लग रहा है कि आपके लैपटॉप में या आपके उस पर कंप्यूटर साउंड कम है, तो ओवर एम्पलीफिकेशन एनेबल कर दीजिए। साइन आपको करना है कीजिए, नहीं करना है नहीं कीजिए, वो तो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं तो जनरली कर देता हूँ, अगर लैपटॉप पे है तो लैपटॉप में की आवाज़ थोड़ा कम होता है,
डेस्कटॉप में तो चलिए आपने एक्सटर्नल स्पीकर लगा लिया, उससे हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज साउंड से रिलेटेड सेटिंग हो गए, पावर से रिलेटेड ये हो गया, परफॉर्मेंस, बैलेंस, पावर आपको कैसा चाहिए। बेसिकली डेस्कटॉप में तो आपको ये चेंजेस करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मतलब थोड़ा सा बैलेंस में ये है कि जैसे स्क्रीन डाउन हो जाएगा, स्क्रीन बंद हो जाएगा, हार्ड डिस्क रुक जाएगी। पहले तो हार्ड डिस्क होता था, अब तो एसएसडी होता है, तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो ये बेसिकली अगर पावर से रिलेटेड परफॉर्मेंस है, लैपटॉप तो आप इसको ट्रैक कर सकते हैं थोड़ा सा अपने लिए। डिस्प्ले हो गया आपका, ठीक है। नाइट लाइट इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। मैनुअल शेड्यूल, ठीक है। नाइट लाइट बेसिकली इसमें क्या करता है, ब्लू लाइट को कम कर देता है, जो आपकी आंखों पे कम असर करता है। ये अच्छा सेटिंग है। आपको अगर लॉन्ग टर्म तक डेस्कटॉप पे काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, इसको इनेबल कर सकते हैं नाइट लाइट। बाकी इसमें है ओरिएंटेशन, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ये सब चेंज कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए मैं ये करूँ और चेंज हो जाएगा भाई, ये चेंज हो गया थोड़ा सा, ठीक है। रिवर्ट कर देता हूँ, तो ऐसे अगर आपको करना है सपोज, हाँ ये होगा ना, अरे यार ये तो ऐसे चेंज हो गया। बैक, हाँ बैक कैसे जाए भाई, इधर से जाए, डिस्प्ले, इससे माउस से काम करना पड़ेगा लगता है, कीबोर्ड से। ये हो गया पोर्ट्रेट। अरे यार माउस हुए नहीं कहा, हाँ अब यहाँ जान देखिए, ये थोड़ा सा इश्यू है इसमें कि माउस में यहाँ तो यहाँ कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर लाता हूँ मैं, अरे यार बड़ा लफड़ा हो गया भाई। चलिए माउस से, टैब से करना, माउस तो काम करना बंद कर दिया है। लैंडस्केप कर दे, अप्लाई, ये भी हाँ, अरे यार ये क्या होगा इससे प्रॉब्लम है। चल, देखिए अप्लाई, अरे यार को ये मैंने कर दिया, कोई नहीं, देखते हैं। होना तो चाहिए ऑप्शन, चलिए यहाँ करें। ये पता नहीं कि यहाँ माउस कर रहा हूँ ना, अच्छा इसमें कुछ तो होगा सेटिंग ऐसे करने पे। डिस्प्ले, अच्छा इससे इससे हो रहा, पोर्ट्रेट, अच्छा यहाँ ऐसे जो करना है, कैसे देखें। चलिए नया एक्सपीरियंस है, अगली बार से ऐसा नहीं करेंगे, वो ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ ऑप्शन तो होना चाहिए, यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे करने से ना साइकिल थ्रू हो रहा। हाँ, अच्छा यहाँ पे ये आ गया, ये हो गया। अच्छा यहाँ ले जाके, आजा आजा, ऑल्ट प्रेस करे क्या, हाँ ऑल्ट प्रेस करिए, ऑल्ट ए। पूरा भगवान बच गए कीप चेंजेस भाई, बड़ा फंस गए थे भाई। चलिए इसको बड़ा किया जाए। देखिए यही से, इसीलिए कहते हैं ना कि मतलब थोड़ा चीजें ध्यान से करनी चाहिए। कुछ अटक गया, छोटा सा मिस्टेक हुआ चेंज वाले का, ठीक है। जैसे आप क्या करते हैं ना, ये तब का सेटिंग है। सपोज आपके दो तीन मॉनिटर है एक मॉनिटर पे आप लैंडस्केप रखना चाहते हैं, एक पे आप पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं, उसके लिए रेजोल्यूशन नहीं हो गया, आपको पता है रिफ्रेश रेट आप सेट कर सकते हैं। सिस्टम में बेसिकली 60 हर्ट्ज तक सब सपोर्ट करता है। स्केलिंग अच्छा चीज़ है। अगर इसको आप फ्रैक्टल कर देंगे तो परसेंटेज में फिर आप कर सकते हैं, ये आसान ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए मैंने 200 कर दिया, ठीक है, अप्लाई कर दिया, तो ये बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ इतना। अगर मैं इसको फ्रैक्टल कर देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद में क्या कर सकता हूँ, 125 कर दूंगा, तो ये स्क्रीन जो है थोड़ा सा जो फॉन्ट वॉन्ट है ये थोड़ा स्केल्ड हो जाएंगे, स्केल अप हो जाएगा। चलिए मैं 150 करता हूँ, ये अच्छा होता है, बेटर लुक है। अगर आपका मॉनिटर बहुत बड़ा है और उसमें चीजें आपको छोटी दिख रही हैं, तो ये ऑप्शन भी है। रेजोल्यूशन घटाने से अच्छा है, इसको घटाने से अच्छा है कि इसको आप बढ़ा दीजिए, ठीक है, इसको बढ़ा दीजिए।
ये जैसे स्केल है, फ्रैक्टल स्केलिंग हो गया आपका। इनेबल्ड एच डी हाई डीपीआई मोड, पता नहीं क्या है। अरे भाई चलिए चेंज हो गया है, चेंज हो गया। फिर कुछ लफड़ा हुआ है नहीं। डेस्कटॉप, ठीक है। बैकग्राउंड किस पे था मैं, किस पे था भाई? डिस्प्ले, कीबोर्ड, रिमूवल मीडिया, मर्चेंट हाउस पे, डिस्प्ले पे ही तो था। इनेबल में। अच्छा, फिर इसने रिजोल्यूशन चेंज कर दिया होगा, कुछ प्रॉब्लम। कीप द चेंजेस मोड, इनेबल टू रेंडर डिस्प्ले डिवाइस, कुछ होगा। ये सेटिंग मुझे नहीं आता है, नहीं पता क्या, आप पढ़ लीजिएगा। आजकल चैट जीपीटी उपलब्ध है, तो डालिए क्या बता देगा आपको है। माउस टच पैड का सेटिंग हो गया, कीबोर्ड का सेटिंग, प्रिंटर अगर ऐड करना है, सपोज ऐड प्रिंटर कीजिए। मेरा नेटवर्क प्रिंटर है तो ये बाय डिफॉल्ट देख लेता है 190। अगर आपको आईपी पता है उसका तो ठीक है, 192.168.1.117। जैसे ये मेरा प्रिंटर है, देखिए मेरा प्रिंटर आ गया, मैंने नेटवर्क प्रिंटर अगर आपका है तो ये ऐसे सेटिंग कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। रिमूवेबल मीडिया, अगर सीडी डलेगा तो क्या करना चाहिए, डीवीडी डलेगा तो क्या, म्यूजिक प्लेयर, सॉफ्टवेयर, ओके। ये सारी चीजें हैं, कलर से रिलेटेड है। वर्चुअल मॉनिटर, आप इसमें नया कलर सेलेक्ट करके वो कर सकते हैं। सपोज मैंने कलर सेलेक्ट किया, ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड प्रोफाइल किया, एक और कलर कर दिया, ओके। फिर ऐड प्रोफाइल, बेसिकली इसमें अगर आप एडिटिंग एडिटिंग करते हैं कलर से रिलेटेड तो कौन सा कलर बहुत एक्यूरेट होगा, बीटा बेस्ट आरजीबी ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये सब चेंज करने पे कुछ होगा देख लीजिए फर्मवेयर, इसमें कोई वो नहीं है। रीजन लैंग्वेज में अगर आपको अपना लैंग्वेज कोई इंस्टॉल करना है, सपोज मैं इंडिया से हूँ, क्या बोल रहा है, द लैंग्वेज सपोर्ट इज नॉट इंस्टॉल कंप्लीट, इंस्टॉल कर देते हैं, क्या बात होगी, 2 मिनट लगेगा, आप देख भी लेंगे। बेसिकली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे ऑप्शंस आपको दिखा दूँ, बाकी आप जब इंस्टॉल करके काम करेंगे तो आपको इंस्टॉल रिमूव लैंग्वेज, मान लीजिए मैंने हिंदी, हिंदी है, हिंदी सपोर्ट इंस्टॉल करना है, मैंने कर दिया, अप्लाई कर दिया, ये इंस्टॉल कर रहा है। लिनक्स की बहुत अच्छी बात यह है कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो है, पोर्टेबल, इजी टू, ठीक है। विंड अप लैंग्वेज इंस्टॉल हो गया। अगर मैं चाहूँ तो हिंदी को पूरे सिस्टम वाइज अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे ये हो गया, कहाँ गया रे, गलत सेलेक्ट हो गया, हिंदी, हिंदी है, अप्लाई सिस्टम वाइज अगर मैं करता हूँ, ठीक है। सिस्टम वाइज हो तो गया है, यूज नंबर डेटा था, ये सारे फॉर्मेट वॉर्मेट चेंज हो जाएंगे। चलिए इंग्लिश ही रखते हैं, इंग्लिश यूएस, कहाँ गया इंग्लिश, 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 इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ही रखते हैं, ठीक है। बाकी ये सब, अगर आप अपने लैंग्वेज में ये चीजें चाहते हैं, नंबर डेट करेंसी, तो आप इसमें ऐसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। कुछ अगर लैंग्वेज ऐड करना है, हिंदी सपोज ये तो एडेड है, ठीक है। तो अगर में कुछ और ऑप्शन होगा मैं बताऊंगा, आई बस कीबोर्ड, ओके, ठीक है। ये लैंग्वेज ऐड करने की एक्सेसिबिलिटी, हाई कॉन्ट्रास्ट करेंगे तो देखिए हाई कॉन्ट्रास्ट में बदल गया, इसलिए देखने उखने के लिए इजी होता है। ऑलवेज शो एक्सेसिबिलिटी बटन, अगर ये करेंगे तो आपको ये बटन यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं, ये कुछ है देखिए, हाई कॉन्ट्रास्ट, जूम, जूम करेंगे तो जूम कर देगा आपको, ठीक है। अगर आप डेस्कटॉप पे कुछ जूम करके देखना चाहते हैं, बंद कर दीजिए, स्केप दबाइए, पता नहीं ये, ये ठीक है। जूम को डिसेबल कर दिया मैंने, ठीक है। ये सारी चीजें ऑप्शन है, ठीक है। इसने पता नहीं कैसे कलर चेंज कर दिया, मुझे पता नहीं। हाई कॉन्ट्रास्ट, लार्ज टेक्स्ट करेंगे तो बड़े बड़े टेक्स्ट हो जाएंगे। इनेबल एनिमेशन, एनिमेशन हो जाएगा, जैसे कलर डिस्प्ले सेटिंग, डिस्प्ले में यार इधर ही था कहीं, पावर, ब्लूटूथ डेस्कटॉप,
इसमें अपीयरेंस लाइट करने में ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है अभी, इसीलिए मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। हम पहुंच गए थे एक्सेसिबिलिटी पे। तो ये सारे ऑप्शन हैं एक्सेसिबिलिटी पे, देख लीजिए इसको। ऑलवेज शो, अगर आपको बटन चाहिए तो ये कर दीजिए, इसमें ये ऑप्शन से देख लीजिए। बेसिकली हाई कॉन्ट्रास्ट, जूम, लार्ज टेक्स्ट, स्क्रीन रीडर, स्क्रीन कीबोर्ड, विजुअल। अगर आपको स्क्रीन पे कीबोर्ड चाहिए तो फिर आपको मतलब ऐसे आ जाएगा, देखिए ये कीबोर्ड आ जाएगा आपको। इसको टाइप करने ऐसे ऐसे टाइप कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको चाहिए कीबोर्ड तो, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत पे। डिसेबल कर दिया मैंने। उसके बाद आप या कीबोर्ड आ गया, विजुअल अलर्ट्स। विजुअल अलर्ट्स आएंगे, जो भी अलर्ट्स आएंगे वैसे पता नहीं, तो देखना पड़ेगा। स्टिकी कीज, शो कीज, बाउंस कीज, माउस कीज, ओके, ये सारे सिस्टम आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा, अच्छा है। जनरली ये चीज़ें मैं यूज़ नहीं करता हूँ, चलिए इसको यहाँ रहने दीजिए, ठीक है। हाई कंट्रास्ट हो गया, लार्ज टेक्स्ट हो गया, जूम हो गया, ये सारी वही चीज़ है। विजुअल अलर्ट ऑफ है, ये नहीं, ओके ओके। अच्छा, विजुअल अलर्ट्स बेसिकली ये है ना कि जैसे कोई भी अलर्ट्स है तो आपको सामने स्क्रीन पे दिखेगा, आपको सुनाई नहीं देता है। अगर कोई सपोज स्पेशली एबल्ड है, डेफ है, उसके लिए विजुअल अलर्ट स्क्रीन पे आ सकते हैं। स्क्रीन, कीबोर्ड, ये सब सारी चीज़ें वही है। उसका यूजर्स हो गया, इसमें आप चाहे तो यूजर ऐड कर सकते, अनलॉक करना पड़ेगा उसके लिए पहले आपको, ठीक है। ये अनलॉक हो गया। इसका पासवर्ड ऑटोमेटिक लॉगिन कर सकते हैं कि बिना यूजर नेम पासवर्ड के मांगे ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। जो डिफॉल्ट अकाउंट आप मान सकते हैं, अकाउंट एक्टिविटी लॉग्ड इन, ये सब कुछ है। उसके बाद अगर आपको यूजर नया ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड यूजर और एडमिनिस्ट्रेटर यूजर, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, ऐसे करके। ये सारे ऑप्शंस है इसमें। अलाउ यूजर टू सेट पासवर्ड व्हेन दे, अगर ये पासवर्ड आप ही सेट कर दीजिए, यूजर को बता दीजिए, नहीं तो नेक्स्ट जब लॉगिन करेगा यूजर तो वो अपना सेट कर सकता है पासवर्ड। ये सारे ऑप्शंस है। डिफॉल्ट एप्लीकेशंस है, वेब के लिए फायरफॉक्स, मेल के लिए फायरफॉक्स। इसमें आप चूज कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई मेल क्लाइंट इंस्टॉल है तो उसको चूज कर लीजिए, यहाँ आ जाएगा वो। कैलेंडर, मूवी, वीडियोस के लिए एक एक बाय डिफॉल्ट एक एक इंस्टॉल है, तो इसमें एक दिखा रहा है। अगर मोर देन वन एप्लीकेशन होंगे, सपोज म्यूजिक के लिए, तो यहाँ वो आ जाएंगे। आपको जो चाहिए डिफॉल्ट एप्लीकेशन आप चूज कर सकते हैं। डेट एंड टाइम ये हो गया, ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम करेंगे तो ऑटोमेटिकली सिंक कर लेगा। ये टाइम जोन आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं अगर गलत हो गया है तो। टाइम फॉर्मेट AM PM चाहिए, 24 आवर चाहिए, यहाँ देखिए चेंज हो गया, 16:33 हो गया। AM PM ही रखते हैं फिलहाल। OS अपग्रेड एंड रिकवरी, इसमें कुछ आता होगा ऑप्शन अपग्रेड करने का, अगर देखिए आ गया ना, यू आर रनिंग मोस्ट करेंट, सो हमारा जो सिस्टम है मोस्ट करेंट है, ऑटोमेटिक अपडेट कर देंगे तो अपने आप अपडेट कर देगा, ठीक है। आप, ये है अपडेट ऑन वेडनेसडे 10, आप ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक अपडेट, ये आप ऑटोमेटिक अपडेट कीजिए। इंस्टॉलेशन आप क्या कीजिए कि उसको डिसेबल कर दीजिए, फिर ये आपको दिखाएगा कि वेदर यू वांट टू अपडेट और नॉट, यू कैन चूज। तो सपोर्ट, ये पॉप ओएस का सपोर्ट सिस्टम है। डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको पढ़ना है तो इसको क्लिक कीजिए, देखिए पूजा सेटअप डिफॉल्ट चल रही है, कौन सा कोई ब्राउजर है, फायरफॉक्स ही तो है, ठीक है। जैसे ये है, इससे रिलेटेड अगर आपको यूज कर रहे हैं और कुछ इस पॉप ओएस के से रिलेटेड आपको कुछ पढ़ना है, इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, you can always go on to documentation, community support, आप इसको कम्युनिटी सपोर्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। पॉपोस का बेसिकली मुझे ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छा लगा। प्राइमरली मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ, मैं VMs में यूज करता हूँ। पहले मैं डुअल बूट रखता था, मतलब उबंटू या डेबियन या सेंटोस या RHEL, तो प्रोफेशनल है तो वो बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया। उसी का ऑप्शन था सेंटोस, जो अब बंद हो गया है। उसका नया कुछ अलग से आ गया। तो आपको जो चाहिए यह है क्रिएट लॉग आर्काइव सपोर्ट, अगर आपको कुछ लॉग आर्काइव करना है, मतलब कोई सपोर्ट के लिए लॉग्स भेजने हैं तो ये क्रिएट कर देगा। शो इन फोल्डर यहाँ पे आ गया, इसमें इसने लॉग क्रिएट कर दिया, सारा डिटेल सिस्टम से रिलेटेड करेगा। अब इसको आप भेज सकते हैं सपोर्ट के लिए, कि आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। ये है VMware, अच्छा ये इसका वो दिखा रहे हैं VMware में इंस्टॉल है बेसिकली। अब हो गया अबाउट, लास्ट ऑप्शन है डिवाइस नेम पॉप, यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप डिवाइस नेम सपोज POPOS हम मान लीजिए हमने चेंज कर दिया, ये चेंज हो गया। इतना आसान है। हार्डवेयर मॉडल ये है,
मेमोरी मैंने 16 GB एलोकेट किया था, प्रोसेसर इंटेल कोर 9 सिक्स सिक्स कोर से एलोकेट किया था, ग्राफिक्स मैंने मेरा ग्राफिक्स है बट बाय डिफॉल्ट ये वही ले रहा है। अब हो सकता है ग्राफिक्स इंस्टॉल करें तो ले ले, एनवीडिया है मेरे अंदर, लेकिन उसको नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा बेसिकली है। डिस्क कैपेसिटी 25 GB मैंने लिया था। ओएस नेम ये है, ओएस टाइप 64 बिट है। जीनोम वर्जन 4.42.9 दिखा रहा है बेसिकली। विंडोज विंडोइंग सिस्टम X11 है, वर्चुअलाइजेशन VMware है, ठीक है, VMware के इंस्टॉल। बेसिकली ये ओवरऑल सेटिंग हो गया है। तो हमने सेटिंग कर ली, उस सेटिंग नहीं कर ली मतलब सारा देख लिया ऑप्शन। तो ये बेसिकली है पॉप ओएस। तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा, है ना, कि क्या है बाय डिफॉल्ट इसमें। अब थोड़ा, हाँ, एक चीज बच गया, एप्लीकेशंस देख लेते हैं क्या डिफॉल्ट है। कैलकुलेटर है, कैलेंडर है, वर्क स्पेस तो नहीं जा रहा है। ये अपने आप जाना चाहिए, पता है, जैसे ये जैसे है। तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक किया, जैसे यहाँ बाहर आऊं तो ये अपने आप चले जाना चाहिए मुझे। हो सकता है ये सिस्टम पे इंस्टॉल करने पे चला जाए, यहाँ नहीं जा रहा है जो कि गलत है, इसको क्लिक करना पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, ऐसे। तो मैं सपोज मैंने ऐसे क्लिक किया, हटाऊं तो अपने आप चला जाए, ठीक है। यहाँ क्लिक करके ऐसे आओ तो अपने सेलेक्ट कर सकते, छोड़िए। ये एप्लीकेशन है बाय डिफॉल्ट, जो कैलकुलेटर है आप देख लीजिए, ऐसा कैलकुलेटर है जो बेसिक है पर। इसमें ये ऑप्शंस है, एडवांस में ये हो जाएगा, मैथ्स के फंक्शंस आ जाएंगे, फाइनेंशियल में फाइनेंस से रिलेटेड चीजें आ जाएंगी, ठीक है। जो फाइनेंस में रिलेटेड काम करते हैं उनको आइडिया होगा ये सब फंक्शंस किस लिए। अगर प्रोग्रामिंग है करना है तो ये नॉट और जोर ये सब आ जाएंगे। और कीबोर्ड है तो कुछ कीबोर्ड से आप कीबोर्ड से कर सकते हैं, 3+4 ये हो गया ना, 7, ठीक है, ऐसे करके कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। और इसमें ये बहुत अच्छा है, देखिए कि बहुत अच्छा है, मतलब कैलकुलेटर एंगल, अगर एंगल करना है वो तो 90 कुछ होगा क्या, 90 डिग्री, पता नहीं, 2 रेडियन, 2 रेडियन, 90 डिग्री टू इतना, अच्छा 1.5 यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको लेंथ करूँ तो मीटर टू किलोमीटर करना है, तो अगर मैं 100 मीटर करता हूँ, 100 मीटर का किया तो 0.1 किलोमीटर होगा, देखना है ना, 0.1। तो ये है, बहुत अच्छा है बेसिकली, बेसिक वाला है ये, इससे आप मैथ कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। कीबोर्ड जैसे, ठीक है, अच्छा है। आप अगर तो यूज करना तो कर सकते हैं, ओके। कैलेंडर हो गया, कैलेंडर आपने देख ही लिया है, ये है कैलेंडर। इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी, कोई इवेंट्स और समथिंग, एडी डिटेल्स ऐसे करके ऐड कर सकते हैं, पोस्ट कर देते हैं। एप्लीकेशन उसका है, ये हमने इंस्टॉल किया था, अभी खेल के देखेंगे। कॉन्टैक्ट हो गया, इसमें आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। फाइल आपने देखा था, फायरफॉक्स ब्राउजर है, ये हमने गेम इंस्टॉल किया था। ये मेल क्लाइंट है, ईमेल क्लाइंट है, बेसिकली इसमें आपने ईमेल्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि आप ऑनलाइन लॉगिन करें हमेशा। इसी के अंदर, सिस्टम के अंदर आपको ईमेल क्लाइंट मिल जाएगा, इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आपको चाहिए तो, ठीक है। ईमेल क्लाइंट हो गया। ये क्या है, मोज़ैक सेटअप, पता नहीं क्या है, इनपुट मैटर करना, ये मुझे आइडिया है नहीं बेसिकली क्या है, किसके लिए है, मैंने कभी यूज़ किया नहीं है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। आपको अगर किससे इंटरेस्ट होगा तो देख लीजिए, और उनके पॉप शॉप वही जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है तो यहाँ से आप जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। ये क्या है, रिपो मैन, अच्छा, रिपोजिटरीज ऐड करनी है। अगर आपको एक्स्ट्रा सोर्सेस रिपोजिटरी से रिलेटेड अगर आपको ऐड करना है, कोई नया रिपोजिटरी, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट ये है, देखिए बेसिकली ये 1.2 ही यूज़ करता है, रिपोजिटरी के रिपोजिटरी यूज़ करता है। बेस इसका 1.2 ही है, डेवलपर ऑप्शंस ये सब है। प्री रिलीज अपलोड अगर इसको कर देंगे तो जो जैसे प्री रिलीज है वो भी आप में इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप एक्सप्लोर करते हैं, टेस्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अपडेट एक्स्ट्रा सोर्स, ठीक है। तो बेसिकली जो भी रिपोजिटरी या सोर्स से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको आप इसमें इसे एडिट कर सकते हैं। ये सेटिंग हो गया हमारा, हमने देख लिया था। टर्मिनल हो गया, ये हमने देख लिया था, देख लेते फिर से, ठीक है। यूनेम, ने, ठीक है, ये दिखा रहा है,
ठीक है, ये हो गया टर्मिनल। टेक्स्ट एडिटर हो गया, आप इसमें नोटपैड टाइप का कुछ भी कर सकते हैं। क्लोज विदाउट सेविंग। विजुअल स्टूडियो कोड मैंने इंस्टॉल किया था, ठीक है, वो यहाँ आ गया है। ठीक है, ये आ गया। इसमें आप कॉन्फ़िगर कर डेवलपमेंट कर सकते हैं, और इसको अब हटाना कैसे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल एक हो जाएगा। ये देखिए इंस्टॉल हो गया ना। इंस्टॉल हो गया, लेकिन हाँ, इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। अगर इसको हटाना है, अनइंस्टॉल करना है, तो बहुत इजी है। इंस्टॉल कर लीजिए, ये चला गया। ठीक है, अब ये नहीं आएगा। ठीक है, आ रहा है, हाँ चला गया, अब गया। थोड़ा टाइम ले रहा है सिंक होने में। वेदर है, ठीक है। डेवलपर में हमने कुछ नहीं, आ रहा, गलती कर दिया, उसको इसमें डालना चाहिए था ना। तो ये देखे, तो जैसे ऐसे डाल सकते हैं। अगर आपको कोई किसी और फोल्डर में ले जाना है तो ऐसे करके डाल लीजिए, जिसको जहाँ ले जाना है। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपना। ठीक है, ये ऑफिस से रिलेटेड है, लिब्रे ऑफिस। ठीक है, इसमें जो फाइल आपको वाइटर डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो ये कर सकते हैं। ओके यार, ठीक है। तो बेसिकली ऑफिस है, ये सारे, ये क्या है, एक एक आपको खोलना है तो एक एक खोल देगा। ड्रो है, कैलकुलेट है, मतलब एक्सेल मान लीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ऑफिस हो गया, सिस्टम हो गया, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन हो गया, डिस्क एनालाइजर हो गया। अगर आपको देखना है कि डिस्क में कौन क्या यूज हो रहा है तो ये बहुत अच्छा यूटिलिटीज है। ये है आपका जैसे डिस्क, ऐसे देखिए ये पूरा ग्राफिकल दिखा देगा कहाँ क्या है। ठीक है, देखिए ये जैसे है 9.3, ये है यूजर। यूजर इतना ले रहा है, बैक जाइए। देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो साइज से रिकॉर्ड करते हैं, 6 GB यूजर के अंदर है। इसमें लिब और शेयर, ये सब ये बेसिकली एक उसमें रिप्रेजेंट करके आपको दिखा दे रहा है। आपको देखना है कि क्या है ये, देखना है ना। तो ऐसे करके बहुत अच्छा है डिस्क को इंफॉर्मेशन देखने के लिए, ये आप यूज कर सकते हैं। सिस्टम, ठीक है, वो हो गया। लैंग्वेज सपोर्ट, पासवर्ड एंड कीज, इसमें आप पासवर्ड और कीज स्टोर करके रख सकते हैं। पावर स्टैटिस्टिक्स, पावर से रिलेटेड चीज़ें दिखाएगा। स्टार्टअप एप्लीकेशन, अगर कुछ आपको ऐड करना है कि वो सिस्टम के स्टार्टिंग में ही वो हो जाए तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। जो स्टार्टअप मतलब ऑन द सिस्टम स्टार्ट, और अगर कुछ रिमूव करना है तो आप उसको स्टार्टअप से रिमूव कर सकते हैं। सपोज ये जैसे ये मान लीजिए मुझे ये तीन चीज है जो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट हो रही है, तो इसको रिमूव आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये सिस्टम डिफॉल्ट है तो मैं इसको टच नहीं करूंगा, बेसिकली आपको भी नहीं करना चाहिए। ये हो गया सिस्टम मॉनिटर, वो मैंने दिखाई दिया था आपको। प्रोसेस, ये लिस्ट ऑफ प्रोसेस दिखाता है। रिसोर्सेज क्या यूज हो रहे हैं वो दिखाता है, और फाइल सिस्टम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिखाता है। ठीक है, ये हो गया। एक बार और आपको दिखा दूं सिस्टम मॉनिटर, यहाँ पे ऑप्शंस है। ठीक है, प्रेफरेंस, ये सारी देख, इससे रिलेटेड सेटिंग्स है। आपको क्या क्या और सारे इनेबल करने हैं, सपोज ये है ना, मान लीजिए मैं सब इनेबल कर देता हूँ। इनेबल कर दिया, ठीक है, ओके कर दिया, क्लोज कर दिया। अब देखिए इसमें क्या होगा। ये देखिए इतने सारे फील्ड्स आ गए इसमें, ठीक है ना, सारा आ गया, नाइस। ठीक है, तो एक्सप्लोर करिए आप, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, बंद हो गया। अब हम सिस्टम हमने देख लिया। यूटिलिटीज में आर्काइव मैनेजर है। बेसिकली अगर क्रिएट जिप फाइल या आर फाइल ये सब कुछ क्रिएट, आर्काइव फाइल क्रिएट करने हैं उसके लिए है आर्काइव मॉनिटर। कैरेक्टर मैप, डॉक्यूमेंट स्कैनर, स्कैन करना है तो डॉक्यूमेंट व्यूअर, एडी पता नहीं क्या है, एडी इंस्टॉल सम एप्लीकेशन ओपन ब्राउजर, अच्छा कुछ इंस्टॉल करने के लिए है। मैंने इसको यूज नहीं किया है तो मुझे बहुत आइडिया नहीं है। आप देखिए एडी क्या है। यूटिलिटी फॉन्ट्स देखने हैं, एक्सटेंशन अगर कुछ है, जैसे इसमें क्या एक्सटेंशन, कॉस्मिक डॉक, यही वाला डॉक होगा शायद ये। इसमें आप मुझे लगता है और ऐड कर सकते हैं, कुछ है ऑप्शन होगा कुछ। एक्सटेंशन कैन बी कॉज परफॉर्मेंस, कुछ एक्सटेंशंस अगर आपको इंस्टॉल करने हैं जीनोम के तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं मुझे लगता है। ठीक है, ये हो गया यूटिलिटी। फॉन्ट हो गया, हेल्प हो गया, इमेज व्यूअर, इमेज देखने के लिए ये है। यूएसबी फ्लैश, ये अच्छी चीज़ है।
अगर आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईएसओ इमेज अगर आप उसको यूएसबी पे वो करना चाहते हैं तो वो राइट करने के लिए बहुत अच्छा है, बाय डिफॉल्ट इसमें दिया हुआ है। ठीक है, शो एप्लीकेशन, यही जो क्लिक कर रहे हैं तो दिखा रहा है शो लॉन्चर शो। अगर आपको ये चाहिए तो इसको, इधर तो नहीं आएगा शायद, इस पे नहीं आता है, इस पे आ जाएगा सर। इसमें ऑलरेडी है इसलिए नहीं आ रहा, मान लीजिए ये आ जाएगा आप, है ना। जो इसमें नहीं है वो आ जाएगा। सपोज मुझे क्या चाहिए, फॉन्ट को यहाँ लाना है तो ये मैं यहाँ लेके आ जाऊंगा, डिफॉल्ट यहाँ रहेगा, यहीं से मैं अगर एक से तो, अगर जो चीज़ें आप बहुत फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं उसको यहाँ यूज कर रख लीजिए, इस वाले बार पे। जो यूज नहीं करते हैं उसको मत रखिए, इसको हटा दिया मैंने, हट गया। रिमूव का ऑप्शन हो गया, यहाँ से रिमूव, हट गया। अगर मान लीजिए वीडियो प्लेयर है, आप वीडियो देखते हैं तो इसको यहाँ रख लीजिए आराम से। ये आ गया वीडियो देखने के लिए, ये वीडियो प्लेयर है। वीडियो ऐड लोकल वीडियो, ऐड वेब वीडियो, आप में से वेब वीडियो भी देख सकते हैं, आप एक्सक्लूड कीजिए, अच्छा है। तो ये हो गया, यूटिलिटीज हो गई, वीडियोस, ठीक है। ये ओवरऑल हो गया। अब हम खोल लेते हैं गेम, है ना। एक बार गेम स्टार्ट करते हैं जो हमने इंस्टॉल किया था, कहाँ गया कहाँ गया, ये आ गया। पहले हम ये स्टार्ट करते हैं। वाह, परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है। माउस ठीक है, बाकी माउस थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, माउस ऊपर चला जा रहा है। कीबोर्ड से आप खेल सकते हैं, पर ऊपर ठीक है, पर माउस के बारे में बता दी ऐसे ग्राफिक्स ग्राफिक्स। चलिए कि हो गया। एक और गेम इंस्टॉल किया था, ये इसको देख लेते हैं। ग्राफिक ये है, घूम रहा भैया, कैसे खेलते हैं। कुछ तो है सेटिंग, हाँ ये कुछ आया, हाँ ऐसे कुछ करके है। बड़ा कर दिया तो हो रहा, ये जान है। रिज्यूम अपने आप ही खेल रहा भाई, लगता है कंप्यूटर खेल रहा है, कंप्यूटर खेल रहा है साथ पर। अच्छा रुक जाओ भाई, मुझे दिखाना है यार, अब मेरी बारी आएगी शायद, है ना। अरे यार कंप्यूटर में खेले जा रहा है, क्या मतलब। स्पीड स्पीड ठीक है, वो कंट्रोल के, गेम्स के कंट्रोल में थोड़ी इश्यूज है, बट ओवरऑल अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, होप यू हैव लाइक्ड द वीडियो, you like the video, please like, subscribe, comment, and just comment in the comment box what software or what operating system you want me to explore. So I'll explore it for you, so that without installing you can understand how it looks, how it works. So thank you for watching Byte Explorer. We'll keep exploring it and keep sharing with you. Thank you very much. Have a great time ahead. Bye bye, take care. Mhm.